Okay, welcome students to learning session number 7 of chapter number 4, which is environmental management of science 2. So these are the things we have already covered so far. Okay, so the first thing we had seen was, let me take out my laser pointer. The first thing we had seen was ecosystem. So ecosystem is basically which consists of biotic and abiotic factors and their interactions. That is your ecosystem. Then we had seen food chain. Food chain is basically a definite sequence of producers, consumers, and decomposers. Then we had seen food web. Food web is nothing but a network of food chain. Then we had seen trophic levels. Trophic matlab something related to nutrition. Okay, how do we get our energy from? So it is different trophic levels will have different energy levels. Next, energy pyramid. Energy pyramid will give you a graphical representation of various trophic levels. Then we had seen pollution and its types. Three types of pollution we had seen in detail. The three were air pollution, water pollution, and soil pollution. And we had seen four components of those. Okay, the first thing we saw was sources, नहीं components. Components मतलब उस pollution में क्या क्या होता. Then we had seen sources, वो कहाँ से आ रहा है. Then we had seen effect, उसका क्या असर हो रहा है. And lastly we had seen control measure, उसको कैसे हम लोग control कर सकते हैं. So that these things we had seen in detail in pollution and its types. Then we had saw various laws enacted by the government for environmental conservation. Then we had also seen Chipko movement of Bishnoi. In Chipko movement of Bishnoi, we had seen that in 1731, Amrita Devi Bishnoi along with 363 Bishnois they had sacrificed their lives to save khejri trees in a village near Jodhpur in Rajasthan. So that was Chipko movement of Bishnoi. Then we had seen story of Jadhav Molay Peyang. What did we learn from him? That even if one person has a lot of determination, one person can create a new forest out of barren land. And if everyone works together with equal dedication towards energy conservation, we can definitely conserve the environment and protect it. Next, we had seen biodiversity. Biodiversity matlab the variety we see in living organisms. And lastly, we had seen sacred groves. Sacred groves are basically forests which are protected not by the government but by the societies, and they are protected for religious reasons. Okay, sacred matlab pavitra. Moving on, these are the topics we're going to see today. First, we're going to see various symbols related to environmental conservation. Then we're going to see a few organizations for environmental conservation. Then what role you can play in environmental conservation, and we're going to see three endangered heritage places of the country. And these are the new words we're going to learn today. First word is litter, second word is heritage place, third word is habitat, and fourth word is trench. So this is an activity given in your textbook. Some symbols are given below. Find the meaning of those symbols in relation to environmental conservation. Make a list of such symbols. So this is given in your textbook, page number 43. You all must have seen these signs already at many places, wherever public places you visit, or museums you visit, or theaters you visit, or malls you visit. Somewhere or the other you all must have seen this signs. So just try to write what is the meaning of each symbol. Okay, pause the video and try to write. If you all don't want to copy it in your notebook, that's okay. You all can write it with pencil in your textbooks. But pause the video and try to write it by yourself. Try it by yourself. I'm going to wait here for 5 seconds for you to pause the video. Okay, 5 seconds are done. I hope you all paused the video and have guessed what the meaning of each of the symbol is. So these are the meanings. First, यहाँ पे दिख रहा है कि एक आदमी डस्टबिन में कचरा डाल रहा है. So first है do not litter. Litter मतलब क्या? Litter is basically तुम लोग जो पेपर, कैंस, रैपर्स वगैरह जो ऐसी पब्लिक प्लेसेस में खुले में छोड़ देते हैं उसको बोलते हैं लिटर. बेसिकली कचरा जो हम लोग खुले में छोड़ देते हैं उसको लिटर बोलते हैं. सो ये कचरे के डब्बे में डाल रहा है, राइट. सो द मीनिंग इज, सिंबल का मीनिंग इज डू नॉट लिटर. कचरा कहीं पे भी डालो मत, डस्टबिन में डालो. नेक्स्ट इज हियर, यहाँ पे एक चार्जर दिया है और यहाँ पे एक लीफ दिया है. सो बेसिकली एनर्जी को कंजर्व करो, खाली फुकट एनर्जी वेस्ट मत करो. ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ द सेकंड सिंबल. थर्ड सिंबल यहाँ पे बाइसिकल दिया है. सो व्हेनेवर यू यूज बाइसिकल यू आर यूजिंग योर ह्यूमन एनर्जी, राइट. यू आर नॉट यूजिंग एनी फ्यूल. तुम लोग कोई पेट्रोल नहीं जला रहे हो, कोल नहीं जला रहे हो. सो फ्यूल बचता.
सो इसका मीनिंग है सेव फ्यूल. एंड लास्ट इज वेरी इजी, देयर इज अ ड्रॉप ऑफ वाटर गिवन, और आजू बाजू हाथ है, आजू बाजू हाथ यानी उसको बचाओ. ओके, किसको बचाना है? पानी को. सो इसका आंसर है सेव वाटर. So make sure you are marking this in your textbook. Okay, all the answers you are marking in textbook. Again, it can come in objectives, either in your quiz or in your exams. Okay. फिर यहाँ पे बोला stick here a symbol known to you. Okay, so I have also taken out two more symbols. One of this you must have seen recently, especially in Mumbai, because they have banned plastic bags, right? So इस symbol का क्या meaning है? Say no to plastic bag, or you cannot use plastic bags. Why? Because these thin plastic bags, they are very difficult to degrade in the soil. तो soil oil में अटक जाता है और हजारों सालों के लिए वहां पे रहता है. एंड फिर बहुत सारी जगह पे जो हमारे गटर सिस्टम्स है उसको जैम भी कर सकता है. सो नॉट यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, यूजिंग क्लॉथ बैग जो तुम लोग बार बार यूज कर सकते हो. दैट्स अ बेटर प्रैक्टिस टू कंजर्व द एनवायरमेंट. लास्ट इज यहाँ पे बेसिकली उस बीच में जो है ये अर्थ की तरह दिख नहीं रहा है, बट इट्स सपोज टू बी अर्थ. ओके, तो सेंटर में अर्थ है और आजू बाजू हाथ है. आजू बाजू हाथ एज अ सेड, आजू बाजू हाथ आ गया मतलब टेकिंग केयर, बचाना. ओके, सो सेव, किसको सेव कर रहे हैं? बीच में है अर्थ. So save our earth. These are two extra symbols that I have found for you. You can also find more symbols from the internet and maybe copy it down in your notebooks. Okay. Next, let us move ahead. Then there's an end of chapter questions on page number 46. The question asks, what are the meanings of the following symbols and write your role accordingly. Meaning actually easy है इसका, but इसमें तुम्हारा क्या role है? That's a more interesting question. So try to write कि जिस इन सिंबल्स का जो कुछ भी मीनिंग है उसमें तुम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हो. ओके, मीनिंग इज एक्चुअली वेरी इजी. सो अगेन टेक सम टाइम, पॉज द वीडियो हियर, राइट द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स एंड you all can write the role you all can play in it. Okay, take some time, pause the video here. I'll wait for 5 seconds for you all to pause the video and try it by yourself. Okay, I hope you all pause the video and have written at least the meanings. अगर तुम लोग रोल भी नहीं लिख पाए तो भी ठीक है, बट मीनिंग तो एटलीस्ट लिख लिया होगा सब लोगों ने. ओके, सो दिस इज द आंसर. ओके, फर्स्ट थिंग इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ये जो तीन एरोज है, the 3 arrows stand for 3 R's. Okay, first is reduce, यानी अपना कंजम्पशन रिड्यूस करो. हर साल एक नया शू मत बाय करो, हर साल नए कपड़े मत बाय करो, कम चीजें बाय करो. नेक्स्ट इज रीयूज, एक ही चीज को बार बार रीयूज करो. एंड नेक्स्ट इज रिसाइकल, एक बार एक चीज को यूज कर लिया, अभी अगली बार किसी और चीज के लिए यूज करो. दैट इज रिसाइकल. ओके, इसमें क्या रोल तुम लोग प्ले कर सकते हो? यू कैन रिसाइकल एंड रीयूज मटेरियल्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेस्ट. नेक्स्ट, सिंबल. सिंबल अगेन जब भी पानी का ड्रॉप आ गया उसका मीनिंग होता है सेव वाटर. ओके, सो इसमें तुम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हो? डू नॉट वेस्ट वाटर, check leakages and promote rainwater harvesting. check leakage यानी sadly but it is true कि बहुत सारे घरों में नल वल जो होते हैं वो लीक हो रहे होते हैं. सो अगर तुम लोगों ने उसको अच्छे से बंद भी कर दिया फिर भी उसमें से एक एक पानी टपक रहा है. वो हम लोग को एक एक पानी टपक रहे से ज्यादा लगता नहीं है कुछ, बट अगर तुम लोग पूरे साल तक ऐसी एक एक पानी टपकते रहेगा बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है. और ऐसा समझो 100 घर है, ऐसा समझो 1000 घर है, करोड़ों घर है, सो उतना करोड़ों बूंद पानी वेस्ट होने वाला है. ओके, सो लीकेजेस को चेक करना चाहिए हमेशा. और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश से जो पानी आता है उसी को कलेक्ट करके रखना चाहिए बारिश के मौसम में, और पूरे साल उसी पानी को यूज करना चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. लास्टली, ये सोलर पैनल की तरह दिख रहा है, राइट? ये सोलर पैनल की तरह दिख रहा है इसलिए इस सिंबल का मीनिंग है रिन्यूएबल सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जिसको तुम बार बार यूज कर सकते हो, राइट? सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होना, सनलाइट कभी बंद नहीं होने वाली है. या फिर विंड एनर्जी, विंड कभी बंद नहीं होने वाला है, कभी ना कभी आएगा ही वो. सो उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी. बहुत जल्दी से हम लोग को नया नया और एनर्जी मिल सकता है उस सोर्स से. सो इसका या तो सोलर एनर्जी भी हो सकती है या फिर कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी मीनिंग हो सकता है इसका. ओके, सो तुम अभी क्या इसमें रोल प्ले कर सकते हो? फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज स्विच टू सोलर एनर्जी. यू कैन यूज इक्विपमेंट्स विच यूज सोलर एनर्जी. और तुम लोग अपने घर में भी सोलर एनर्जी का एक पैनल लगा दो, फिर तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना नहीं पड़ेगा. एक बार लगाओगे तुम लोग पैनल, बहुत महंगा होता है वो, तो पहली बार में बहुत महंगा लगता है,
बट एक बार उसको लगाने का जितना प्राइस था उतना हमने एनर्जी यूज कर लिया, उसके आगे जितना भी एनर्जी हमें मिलेगा उस सोलर पैनल से वो सब फ्री रहेगा, कि सनलाइट का कोई पैसा चार्ज नहीं करता, राइट? So we can switch to solar energy, use renewable source of energy to prevent depletion of non-renewable energy. रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करो ताकि नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो जल्दी से खत्म ना हो जाए। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आता है? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल है डीजल, नेचुरल गैस, पेट्रोल etc. all these come in non renewable. Okay, let us move ahead. Then here there are a few organizations for environmental conservation. Okay, so basically Teach for India भी एक organization है, right? The Teach for India is an organization which works in education. Okay, उसी तरह education जैसे एक field है वैसे ही environmental conservation भी एक field है जिसमें organizations काम करते हैं। So यहाँ पे दो टाइप के organizations दिए, एक है voluntary organizations. So voluntary मतलब क्या? जो लोग प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, एप्पल, शाओमी, ये सब कंपनीज प्रॉफिट्स के लिए काम करती है। ये लोग जितना भी मेहनत कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ताकि उनको प्रॉफिट मिले, वो लोग पैसे कमा सके। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो लोग पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, वो लोग कोई तो चेंज लाने के लिए काम कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, बट वॉलंटरी है, प्रॉफिट के लिए नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट ऑल दीज थिंग्स फॉर यू। तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक पे चेक कर सकते हो और ये सबके नाम्स रीड कर सकते हो। You should try to remember at least a few of these. Okay. Again, it can be asked in name the following. For example, name any two voluntary organizations working for environmental conservation. तो इन 8 में से कोई भी 2 के नाम तुम लोग को लेने आना चाहिए। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप इज इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल यानी क्या? वो सिर्फ एक कंट्री, 2-3 कंट्री में काम नहीं करते, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। ओके, मल्टीपल कंट्रीज के लिए काम करते हैं। सो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम यहाँ पे राइट में दिया। एंड लास्टली यहाँ पे नीचे क्या दिया? ग्रीन पीस। ग्रीन पीस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। ग्रीन पीस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम करती है। more than 25 lakh people from 26 different countries are members of this organization. इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग 25 लाख से भी ज्यादा है और वो लोग 26 से ज्यादा कंट्रीज में से आते हैं। लास्ट, they have asked you to collect more information about the work of above organizations. Okay, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तुम लोग उसको गूगल करके देख सकते हो कि वो लोग क्या क्या काम कर रहा है। अगेन, इफ यू आर थिंकिंग 10th स्टैंडर्ड के बाद क्या करना है, एंड इफ यू थिंक यू आर वेरी पैशनेट अबाउट एनवायरमेंट और यू रियली आर वरीड अबाउट द एनवायरमेंट, environmental conservation is a very it's an amazing सेक्टर टू वर्क इन। इसमें तुम लोग एडवोकेसी का भी काम कर सकते हो, यानी लोगों को एडुकेट वगैरह करना। इसमें इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, एनवायरमेंट मैनेजमेंट का इंजीनियरिंग भी होता है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी इंजीनियरिंग होता है। सोलर एनर्जी, सोलर सेल को बनाने वाले तुम इंजीनियर बन सकते हो। सो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट एनवायरमेंट, you all can choose to work in these organizations. Okay, next is a question they have asked you all. Next question they have asked you all is, which role would you like to perform? यहाँ पे space नहीं आना चाहिए था, it's one word. Okay, which role would you like to perform and why? Okay, again you all need not copy this, it's given in your textbook. So तुम लोग क्या क्या कर सकते हो environmental conservation के लिए? तुम लोग कंजर्व करने की कोशिश कर सकते हो। कंजर्व यानी बचाना। कंट्रोल करने की कोशिश करो, यानी जितना ज्यादा डैमेज हो रहा है उससे थोड़ा कम डैमेज हो जाए, उसको बोलेंगे कंट्रोल। प्रोडक्शन कर सकते हो, नए ट्रीज प्लांट करो, वुड बी एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन। प्रिजर्व कर सकते हो, प्रिजर्व यानी जैसे था वैसे के वैसे रखना। प्रिवेंट कर सकते हो, प्रिवेंट यानी कुछ बुरा होने से बचाना। और अवेयरनेस कर सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं तुम लोग को ये चैप्टर सिखा रहा हूँ और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में तुम लोग को बता रहा हूँ, तो मैं तुम लोग को एडुकेट कर रहा हूँ, राइट? तुम लोग को बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स है, तो वो अवेयरनेस के अंदर आएगा। तो मैं भी अभी जो मैं कर रहा हूँ तुम लोग को सिखा के ये चैप्टर, it comes under awareness. So I can do so many things about environmental conservation. So just read through each and every of them and decide which one would you like to perform. तुम लोग कौन सा रोल करना चाहोगे और क्यों? Okay, just think about that answer. तुम लोग क्या करना चाहोगे इन
6 चीजों में से और क्यों तुम लोग ने वो चूज किया है. Let's move ahead. Next we are seeing 3 endangered heritage places of the country. Endangered मतलब डेंजर में. ओके, endangered यानी डेंजर में है. हेरिटेज ये वर्ड का मतलब क्या है? हेरिटेज यानी ये वर्ड का मतलब है जो कुछ भी हम लोग को इनहेरिट किया है. इनहेरिट किया यानी जब भी हम लोग के पेरेंट्स से बच्चों को उनका जो कुछ भी पैसा है, प्रॉपर्टी अपने आप मिल जाता है, उसको बोलते हैं इनहेरिट करना. ओके, अपने पेरेंट्स से ले लेना, मिल जाना, उसको बोलते हैं इनहेरिट करना. सो हेरिटेज मतलब क्या? हेरिटेज यानी जो कुछ भी हम लोग इनहेरिट करते हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, हमारे फैमिली से या फिर हमारे एंसेस्टर्स से, उसको बोलेंगे हेरिटेज. ओके, सो हेरिटेज प्लेस यानी क्या? जो हम लोग को हमारे पूर्वजों ने दिया है. ओके, पूर्वज रख के गए हमारे लिए. So 3 endangered heritage places of the country कौन से हैं? फर्स्ट इज द वेस्टर्न घाट्स. ओके, वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे मिलेंगे? तुम लोग को मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स गुजरात में भी होते हैं, थोड़ा सा पार्ट महाराष्ट्र में, थोड़ा सा पार्ट गोवा में, तमिलनाडु, केरला, इन सारे स्टेट्स के थोड़े थोड़े पार्ट में वेस्टर्न घाट मिलेगा तुम लोग को. ओके, सो ये डेंजर में क्यों है? इट इज इन डेंजर बिकॉज ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री. वहां पे बहुत ज्यादा माइनिंग हो रहा है. एंड सर्च फॉर नेचुरल गैस को ढूंढने के लिए बहुत सारा वहां पे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. ओके, कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में. उससे क्या हो रहा है? हैबिटेट्स ऑफ एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बाइसन ऑफ दिस रीजन हैव बीन अंडर थ्रेट. तो हैबिटेट इस वर्ड का मतलब क्या है? हैबिटेट यानी जो नेचुरल एनिमल्स का घर है उसको बोलेंगे हैबिटेट. ओके, सो अगर समझो एक मंकी किसी जंगल में रह रहा है, वो जंगल उसका हैबिटेट है क्योंकि उसका नेचुरल घर है. ओके, सो हैबिटेट यानी नेचुरल घर फॉर एनिमल्स. सो हैबिटेट ऑफ किसका प्रॉब्लम हो रहा है? एशियाटिक लायन, दैट्स द फर्स्ट वन. सेकंड, वाइल्ड बाइसन. इन रीजन में जो ये एशियाटिक लायन और वाइल्ड बाइसन है वो लोग अंडर थ्रेट है. व्हाई? बिकॉज ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री एंड सर्च फॉर नेचुरल गैस. That was your first endangered heritage place. Second endangered heritage place is Manas Sanctuary of Assam. Sanctuary यानी जो फॉरेस्ट प्लेस गवर्नमेंट से प्रोटेक्टेड होता है. ओके, सो मानस सैंक्चुरी ऑफ आसाम इज अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर. वहां पे डैम्स बांध रहे और बहुत ज्यादा पानी को यूज कर रहे. इसके वजह से क्या हो रहा है? टाइगर एंड राइनो ऑफ दैट रीजन आर अंडर थ्रेट. टाइगर एंड राइनो को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. लास्ट, सुंदरबन सैंक्चुरी ऑफ वेस्ट बंगाल. सो सुंदरबन सैंक्चुरी ऑफ वेस्ट बंगाल किसके लिए फेमस है? इट इज रिजर्व फॉर टाइगर्स. ओके, उसके लिए उसके अंदर टाइगर्स के लिए रिजर्वेशन है. बट हाउएवर द टाइगर पॉपुलेशन एंड ओवरऑल लोकल एनवायरनमेंट इज सीरियसली चैलेंज्ड बाय डैम्स, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फिशिंग, ट्रेंचेस डग फॉर द सेम एटसेट्रा. ओके, टाइगर पॉपुलेशन यहाँ का कम हो रहा है. क्यों हो रहा है? फर्स्ट इज डैम्स, बहुत सारे डैम्स बिल्ड हो रहे हैं वहां पे. सेकंड इज डिफॉरेस्टेशन नहीं, फॉरेस्ट को काट देना. एक्सेसिव फिशिंग. सो वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर फिश, राइट? वेस्ट बंगाल का फिश बहुत ज्यादा फेमस है. तो वहां पे सुंदरबन सैंक्चुअरी में बहुत ज्यादा फिशिंग हो रही है. अगर बहुत ज्यादा फिश को तुम लोग ने एक साथ पकड़ लिया तो जो रिप्रोड्यूस करने वाले हैं, बच्चे बनाने वाले हैं फिश, वो पानी में कम रहेंगे और फिर बाद में कभी और फिश बनेंगे ही नहीं. सो वहां पे बहुत ज्यादा फिश हो रहा है और फिश बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? ट्रेंचेस आर डग फॉर द सेम. ट्रेंचेस यानी एक पतला सा खड्डा होता है. ओके, एक लंबा और पतला खड्डा होता है, उसको बोलेंगे ट्रेंच. ओके, सो ट्रेंच क्यों खोद रहे हैं? वो लोग फिशिंग के लिए ट्रेंचेस खोद रहे हैं. सो ये सब की वजह से वहां का टाइगर पॉपुलेशन कम हो रहा है. अगेन इट वुड बी गुड इफ यू ऑल कैन बाय हार्ट दिस. जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे बोल्ड और अंडरलाइन किया, और जो मैंने रेड में मार्क किया, ये सब अगर तुम लोग ने बाय हार्ट किया तो इट वुड बी एडवाइजेबल. अगेन इट कैन बी आस्क्ड फॉर objective question, can be multiple choice questions, name the following, match the column, etc. It's better you'll by heart all this. Okay, so that was it for today. These are the words we learned. First was litter. Litter yani rubbish such as paper, cans, bottles left lying in an open or a public space. Next is heritage. Heritage matlab property that is inherited. Second last is habitat. Habitat matlab natural home of an animal, plant or any other organism. Last is trench. Trench matlab a long and narrow ditch. Ditch matlab khadda. Okay,
So these were the new words you all learned today, and that was it for today. Hope you all understood this, and I will see you all tomorrow in learning session number 8. Okay, see you guys. Bye.